हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इकोनॉमिक्स के लिए स्टडी कर रहे थे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो आज उसी सीरीज़ में एक न्यू वीडियो आ रही है आपके लिए। सेम ऑप्शंस ए बी सी डी, इफ बोथ assertion and reason are true and reason is correctly explaining the assertion, A option will be the right. If both are true, assertion and reason both are true but reason is not correctly explaining the assertion, B option will be correct. Assertion true but reason false, C option. Assertion false but reason true, D option. So first question we are having, purchase of machinery by a firm for own use is included in national income. जी हाँ, ये आपकी इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में अगर आप कोई भी मशीनरी को यूज़ कर रहे हो अपने खुद के फर्म में, बिकॉज इट विल बी काउंटेड एज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो उसमें हम C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम करते हैं, तो उसमें जो हमारा आई है वो इसी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करते हैं। Reason is purchase of machinery by a firm is an example of investment expenditure or capital formation. Yes, this one is the reason for adding this in national income. So our correct option for first question will be A. It means reason as well as assertion both are true and reason is correctly explaining this assertion. Second question is, on account production of goods of the producing units is not taken into account while estimating value added. This one is completely wrong. Why? Because whenever we are calculating the value added, we are going to take the goods which we have produced for our self consumption. वो काउंट होते ही हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, बट इट इज सेइंग दैट इट इज नॉट काउंटेड, तो ये गलत होगा, आपकी असर्शन सेकेंड क्वेश्चन में फॉल्स होगी। Reason is value of output includes the value of intermediate goods used in the process of production. Value added does not. ये बात ठीक है कि आउटपुट की जो वैल्यू होती है उसमें जो आपकी इंटरमीडिएट कंजप्शन होती है गुड्स की वो ऑलरेडी उसमें काउंट हुई होती है, बट वैल्यू एडेड में वो काउंट नहीं हुई होती है। वैल्यू एडेड में तो हम क्या करते हैं, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, हम इंटरमीडिएट कंजप्शन को एक्सक्लूड करते हैं, तो हमारा रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी हियर D. Assertion is false but reason is true. Third question is, exports are included in GDP. Yes, this one is correct because C plus I plus G plus X minus M. It means we are already including our exports in domestic income and GDP is gross domestic product, so exports are included in GDP and this one is our correct statement, assertion. Reason is, exports are a part of goods and services produced within the domestic territory of a country. Yes, this is the reason कि एक्सपोर्ट जो गुड्स हमने किए वो हमने कहाँ प्रोड्यूस किए थे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही प्रोड्यूस किए थे, तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेंगे। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज, मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम. Reason is, sale and purchase of shares only causes change of ownership of financial asset. Yes, both the statements are right and reason is also correctly explaining it. कि जो आपकी सेल ऑफ शेयर से मनी रिसीव होती है वो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में काउंट नहीं होती। द रीजन इज वो आपकी फैक्टर इनकम ही नहीं है, क्योंकि वो जस्ट क्या एक फाइनेंशियल एसेट, शेयर्स क्या होते हैं हमारे फाइनेंशियल एसेट। जस्ट सपोज करो आपने 100 रुपये का नोट किसी को देके 50 के नोट्स इन एक्सचेंज ले लिए, तो क्या है वहाँ पे क्रिएशन हुआ, कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। सेम विद द एक्सचेंज ऑफ योर मनी विद शेयर्स। सो राइट ऑप्शन विल बी फॉर फोर्थ क्वेश्चन विल बी ए, कि इससे कोई भी डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में एडिशन नहीं होता। सो फॉर फोर्थ क्वेश्चन ए ऑप्शन विल बी द राइट वन। फिफ्थ क्वेश्चन इज, corresponding to capital gains there is no value addition in the economy and reason is income from capital gains is not to be treated as factor income. तो ठीक है, ये दोनों बातें हमारी यहाँ पे ठीक है कि कैपिटल गेन होता है। सपोज आपकी कोई बिल्डिंग थी जो आपने 5 लाख की परचेज की थी, आज आपने उसको सपोज करो 5,50,000 में सेल कर दिया, तो जो 50,000 आपने एक्स्ट्रा अर्न किया डैट वन इज कैपिटल गेन। बट आपको कैपिटल गेन होने से कोई न्यू बिल्डिंग थोड़ी ना बन गई, बिल्डिंग तो वही है जो पहले थी, बस उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। तो इसी वजह से कहते हैं कैपिटल गेन्स की वजह से कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता इकोनॉमी में, ये बिल्कुल करेक्ट है। और इनकम कैपिटल गेन्स वाली कभी भी फैक्टर इनकम में आपकी काउंट नहीं होती। दोनों बातें करेक्ट है, बट रीजन इसको जो असर्शन गिवन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि वैल्यू एडिशन क्यों नहीं होता। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।